Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th ہسٹری 12ویں جماعت کا تاریخ کا مضمون ہے۔ تیسرا سبق ہے بھارت اور یورپی استعماریت، نوآبادیات، کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تیسرا سبق بھارت اور یورپی استعماریت، نوآبادیات۔ سوال نمبر 1 ہے الف، خواصین کی مدد سے خانہ پوری کیجیے اور بیانات دوبارہ لکھیے۔ پہلا سوال ہے واسکو ڈی گاما ڈیش بحری جہاز رہا تھا، اس کا صحیح جواب ہے پرتگال۔ دوسرا سوال ہے انگلستان کی حکومت نے مشرقی ممالک سے تجارت کا اجازت نامہ ڈیش کو عطا کیا، اس کا صحیح جواب ہے سر جارج آکزیڈن۔ تیسرا سوال ہے پرتگیزیوں کی وسیع واریس سلطنت کا مرکز ڈیش تھا، اس کا صحیح جواب ہے گوا۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، گروہ بے سے غلط جوڑی کی نشاندہی کیجیے اور جوڑیوں کو درست کر کے لکھیے۔ گروہ الف، آرک بشپ اور بیسپو، چانسلر ویڈر دی فیزرینڈو، کپتان، اس کا صحیح جواب ہے غلط جوڑی آرچ بشپ اور بیسو، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اس کی صحیح جوڑی ہے آرک بشپ اور بیسپو، مذہبی رہنما۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، گروہ سے تعلق نہ رکھنے والے الفاظ تلاش کریں۔ پہلا ہے بھارت مشرقی ساحل پر موجود پرتگیزوں کی تجارتی کوٹھیاں، ناگاپٹنم، ملا پور، میالی پور، ساؤٹوم، ہگلی، سورت، اس کا صحیح جواب ہے سورت۔ دوسرا سوال ہے بھارت کے مغربی ساحل پر پرتگیزیوں کی تجارتی کوٹھیاں، دیو، ماہے، دمن، چول، گوا، اس کا صحیح جواب ہے ماہے۔ تیسرا سوال ہے پرتگیز انتظامیہ کے مختلف عہدے، وائس رائے، کیپ تاون، جنرال، آرسی، بیسپو، ویڈری دی فیزینڈا، واسکو ڈی گاما، اس کا صحیح جواب ہے واسکو ڈی گاما۔ چوتھا سوال ہے انگریز فیکٹریوں کا عملہ، وائس رائے، اکاؤنٹنٹ، اسٹور انچارج، خزانچی، کلرک، اس کا صحیح جواب ہے وائس رائے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے پرتگالی جنوبی بھارت کے ساحلی علاقوں پر قابض ہو گئے کیونکہ، اس کا صحیح جواب ہے الف، انہوں نے جنوبی بھارت کے مختلف حکمرانوں کے درمیان کشیدہ تعلقات اور آپسی رنجشوں سے فائدہ اٹھایا۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، تاریخی واقعے، مقامات، اشخاص کا نام لکھیے۔ پہلا ہے پرتگیزیوں کے ذریعے دیا گیا جہاز رانی کا خصوصی اجازت نامہ، کارٹاز۔ دوسرا ہے جنوبی افریقہ میں موجود پرتگیز تجارتی مراکز، اس کا صحیح جواب ہے کیپ آف گڈ ہوپ۔ تیسرا ہے سلطنت ہند میں قائم تمام پرتگیز نوآبادیاں، اس کا جواب ہے اسٹوڈا انڈیا۔ چوتھا ہے تمام پرتگیز علاقوں کا نگراں، اس کا صحیح جواب ہے وائس رائے۔ پانچواں ہے انگریز فیکٹریوں میں کام کرنے والا عملہ، اس کا صحیح جواب ہے فیکٹرز یعنی عاملین۔ چھٹا سوال ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایشیا کی فیکٹریوں کا مرکز، اس کا جواب ہے سورت۔ ساتواں ہے انگلستان کے بادشاہ چارلز دوم کی منگنی پر پرتگال کے بادشاہ کا دیا ہوا تحفہ، اس کا صحیح جواب ہے ممبئی کے جزائر۔ سوال نمبر 3 ہے دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے پرتگیز اور فرانسیسی علاقے، دوسرا بھارت کے مغربی ساحل پر موجود نوآبادیوں کے نام لکھیے، جنوبی بھارت میں موجود فرانسیسی نوآبادیوں کے نام بتائیے، پرتگیزیوں نے بھارت کے کس ساحل پر اپنی نوآبادیات قائم کی تھی، چوتھا بھارت میں برطانوی نوآبادیوں کے بڑے مراکز کے نام لکھیے، پانچواں کولکاتہ کے نزدیک قائم نوآبادی کا نام اور اس کے قائم کرنے والے ملک کا نام لکھیے۔ یہ نقشہ ہے، یہاں پر چندر نگر ہے، کلکتہ، مدراس، پانڈیچری، کاریکال، ماہے، گوا، ممبئی، دادرا نگر حویلی، دیو، سورت اور کراچی وغیرہ۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے بھارت کے مغربی ساحل پر موجود نوآبادیاں دیو، دمن، دادرا نگر حویلی، گوا ہیں۔ دوسرا ہے جنوبی بھارت میں موجود فرانسیسی نوآبادیوں کے نام ماہے، کاریکل، پانڈیچری ہیں۔ تیسرا
पुर्तगीजियों ने भारत के मगरबी साहिल पर अपनी नौ आबादियात कायम की थी। चौथा, भारत में बरतानवी नौ आबादियों के बड़े मराकज़ के नाम कराची, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता हैं। पांचवा, कोलकाता के नज़दीक कायम नौ आबादी का नाम चंद्रनगर है और इसके कायम करने वाले मुल्क का नाम फ्रांस है। सवाल नंबर 4 है, दिए गए तस्वुराती खाके को मुकम्मल कीजिए। मुंबई के जज़ायर, मुंबई, वडाला, मझगांव। इसका मुकम्मल जवाब देखते हैं। मुंबई के जज़ायर साइन, वडाला, परेल, मझगांव, माहिम, वर्ली और मुंबई। सवाल नंबर 5 है, नोट लिखिए, तस्वुरात की वजाहत कीजिए। पहला है कार्टाज। कार्टाज पुर्तगीजियों के ज़रिए दिया गया जहाज़ रानी का खसूसी इजाज़तनामा कार्टाज कहलाता है। उमूमन इसमें जहाज़ का नाम, जहाज़ के कप्तान का नाम, रवानगी और दारामद की बंदरगाह का नाम और अपनी हिफाजत के लिए जहाज़ पर नस्ब हथियारों की तफसीली मालूमात दर्ज होती थी। दूसरा है इस्तोडा इंडिया। इसका जवाब है, पुर्तगीज़ नौआबादियाँ केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से लेकर चीन के मकाओ इलाके तक वसीफ़ हो गई थी। ये सभी नौआबादियात सल्तनत हिंद में क़ायम पुर्तगीज़ इलाक़ों में शुमार की जाती थी, जिसे इस्तोडा इंडिया कहा जाता था। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल बयानात को वजूहात के साथ बयान कीजिए। पहला है, भारतीय हुक्मरानों को कार्टाज हासिल करना पड़े। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, पुर्तगीज़ों ने बहर हिंद में अपना पुख्ता गलबा क़ायम कर लिया तो भारतीय हुक्मरानों के लिए ये लाजमी करार दिया गया कि वो बहर हिंद में जहाज़ रानी के लिए पुर्तगीज़ों से खसूसी इजाज़तनामे कार्टाज हासिल कर लें। दूसरा नुक्ता है, अगर मुकामी हुक्मरानों ने भी पुर्तगीज़ियों के इजाज़तनामे के बग़ैर समंदर में जहाज़ रानी की कोशिश की तो इनकी जहाज़ ताकत के ज़रिए या तो ज़ब्त कर लिए गए या गर्क कर दिए गए। तीसरा है, पुर्तगीज़ियों ने इतनी वसी ताकत हासिल कर ली थी कि अजीम मुग़लों और जुनूब में मौजूद सुल्तानों को भी इनसे समंदरी नक़्ल व हमल के लिए ख़ुसूसी इजाज़तनामे ख़रीदना पड़े थे। दूसरा है, पुर्तगीज़ों से जंग भारतीय हुक्मरानों के लिए मुश्किल और परेशानी का सबब हुई। इसकी वजह है, पहला नुक्ता है, 16वीं सदी के आगाज़ तक पुर्तगाली भारतीय साहिलों का बड़ा हिस्सा अपने ज़ेर तसल्लुत ले आए थे। पुर्तगालियों ने जनूबी भारत के मुख्तलिफ हुक्मरानों के दरमियान कशीदा ताल्लुक़ात और आपसी रंजिशों का फ़ायदा उठाया। दूसरा, इन्होंने मगरबी साहिल पर अपनी नौ आबादियाँ क़ायम की और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़िलों की तामीर की। तीसरा है, इन्होंने अपनी नौ आबादियाँ को बैरूनी हमलों से बचाने और इन्हें रस्ल और रसायल के ज़रिए अशिया वहम पहुँचाने के लिए समंदरों रास्तों का इस्तेमाल किया। चौथा नुक्ता है, पुर्तगीज़ों की बहरी ताकत बहुत मजबूत थी। वो अपने दुश्मनों के इलाक़ों पर हमला करने के लिए समंदरी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। भारत के मुकामी हुक्मरान हरबी सलाहियतों और तरीक़ों में पुर्तगीज़ों का मुकाबला न कर सके। सवाल नंबर 7 है, अपने नज़रियात बयान कीजिए। पहला है, भारत में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपने सभी हरीफों को शिकस्त दे दी और इनका कोई हरीफ क्यों बाकी नहीं रहा, इस बारे में अपनी राय बयान कीजिए। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम बादशाह लुई चौदहवीं के हुक्म पर फ्रांसीसी वज़ीर ख़जाना जेन हॉपिटिस कोलबर्ट के ज़रिए किया गया। दूसरा नुक्ता है, कंपनी को मशरक़ी ममालिक से तिजारत, अपनी बहरी फ़ौज का क़याम और टैक्स से छूट का इख्तियार दिया गया। कंपनी को मशरक़ी ममालिक से जंग और माहदों का इख्तियार भी अता किया गया। तीसरा है, 1666 ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दरबार में अपना एक सिफारती दस्ता भी रवाना किया, जिसने सूरत में अपनी फैक्ट्री क़ायम करने की इजाज़त हासिल की। 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री क़ायम की गई। चौथा है, इसके बाद पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, कारिकाल वगैरह में फैक्ट्रियाँ क़ायम की गई। इसी दौरान फ्रांसीसी कुतुब शाही सल्तनत और डच हुक्मरानों से जंग में उलझे रहे। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों की सरगर्मियों का मरकज़ था, जिस पर कर्नाटक के नवाब की हुक्मरानी थी। पांचवा है, नवाब के ख़ानदान के लोग आपस में तख्त नशीनी की जंग लड़ रहे थे। छठा, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने इस मामले में मुदाखलत शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 1744 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 मशहूर जंगें हुई, जिसे कर्नाटक की जंग के नाम से याद किया जाता है।
सातवां है तीसरी कर्नाटक की जंग में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को फैसला कुन शिकस्त देकर इसके साथ ही भारत में अंग्रेज़ों का कोई हरीफ बाकी नहीं रहा। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल सवालों के जवाब तफसील से लिखिए। पहला है, पुर्तगीज़ों ने अपनी नौआबादियात कहाँ कायम की? इसका जवाब है, पहला नुक्ता है 1498 ईस्वी में जब पुर्तगीज़ मल्लाह वास्को डी गामा भारत के मगरबी साहिली बंदरगाह कालीकट यानी कोझिकोड पर लंगर अंदाज हुआ, तो इसके बाद पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान में अपने आप को मुस्तहकम करने में देर नहीं लगाई। दूसरा है, 16वीं सदी के आगाज़ तक पुर्तगाली भारतीय साहिलों का बड़ा हिस्सा अपने ज़ेर तसल्लुत ले आए थे। इन्होंने अपनी नौआबादियों को बैरूनी हमलों से बचाने और इन्हें रस्ल रसायल के ज़रिए अशिया बहम पहुँचाने के लिए समंदरी रास्तों का इस्तेमाल किया। तीसरा नुक्ता है, पुर्तगीज़ों की बहरी ताकत बहुत मजबूत थी। वह अपने दुश्मनों के इलाक़ों पर हमला करने के लिए समंदरी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। चौथा, पुर्तगीज़ों ने बहरे हिंद में अपना पुख्ता गलबा कायम कर लिया, तो भारतीय हुक्मरानों के लिए भी ये लाजमी करार दिया गया कि वो बहरे हिंद में जहाज़ रानी के लिए पुर्तगीज़ों से खसूसी इजाज़तनामे कार्टाज हासिल कर लें। पाँचवा है, अगर मुकामी हुक्मरानों ने भी पुर्तगीज़ों के इजाज़तनामे के बगैर समंदर में जहाज़ रानी की कोशिश की, तो इनके जहाज़ ताकत के ज़रिए या तो ज़ब्त कर लिए गए या गर्क कर दिए गए। छठा है, पुर्तगीज़ों ने इतनी वसी ताकत हासिल कर ली थी कि अजीम मुग़लों और जुनूब में मौजूद सुल्तानों को भी इनसे समंदरी नक़्ल व हमल के लिए खसूसी इजाज़तनामे ख़रीदना पड़े थे। सातवां नुक्ता है, 1608 ईस्वी तक पुर्तगीज़ों ने भारत के मगरबी साहिली इलाक़ों देव, दमन, चोल, गोवा बशमुल साष्टी और बारदेश, ओनावर, गांगोली, बसरूर, मंगलूर, काटू कान्नूर, कोडंगलूर, कोचीकोलम वगैरह में अपनी नौआबादी कायम कर ली थी। आठवां नुक्ता है, इसी तरह मशरक़ी साहिली इलाक़ों नागपट्टनम, मल्लापुर, म्यालीपुर, साउटोम, सांथोम और बंगाल में हुगली वगैरह इलाक़ों में अपनी तिजारती कोठियाँ कायम कर ली थी। नौवां नुक्ता है, पुर्तगीज़ों की इस वसी वारी सल्तनत का मरकज़ गोवा था। पुर्तगीज़ नौआबादियाँ केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से लेकर चीन के मकाऊ इलाके तक वसी हो गई थी। ये सभी नौआबादियाँ सल्तनत हिंद में क़ायम पुर्तगीज़ इलाक़ों इस्तोडा इंडिया में शुमार किए जाते थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो सब पसंद आ रहा होगा। दूसरा है, डच हुकूमत ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन से इख्तियारात अता किए? इसका जवाब है, पहला नुक्ता है 1602 ईस्वी में बहुत सारे वलंदीजी डच कंपनियां यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक प्लेटफॉर्म पर आई। डच हुकूमत ने इस कंपनी को मशरक़ी ममालिक से तिजारत की इजाज़त अता की। इसी के साथ साथ इन्हें कारखानों के क़याम, क़िलों की तामीर की इजाज़त भी दी गई। दूसरा है, इस इजाज़तनामे के मुताबिक कंपनी ने हिंदुस्तानी उमूर की देखभाल करने के लिए गवर्नर जनरल का तक़र्रुर किया। तीसरा, 17वीं सदी के वस्त तक कंपनी ने अफ्रीका के मशरक़ी साहिल से जापान तक डच नवाबादी और कारखाने कायम कर लिए थे, जिनमें मोज़म्बिक, जनूबी अफ्रीका, यमन, इराक़, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, सियाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ताइवान, चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया के मौजूदा ख़ित्तों का अहाता किया गया था। छठा है, डचों ने अपनी फैक्ट्रियों के अहातों में मुख्तलिफ इमारतें तामीर की और इनके इर्द गिर्द फसीले यानी हिफाजती दीवारें भी तामीर की। डचों के हमले में मुकामी अफराद को भी शामिल किया गया था। पाँचवा, डचों ने 1602 ईस्वी में पेटापल्ली के मकाम पर कोरोमंडल के शुमाली साहिली इलाक़ों में अपनी पहली फैक्ट्री कायम की। इसके अलावा मसूलीपट्टनम, पोलीकट, पित्रो, पायोलीवर, पोर्ट नोवा, कौरिकाल, आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, चिंसोरा, ठट, खम्बायत, सूरत और नागपट्टनम वगैरह में अपनी फैक्ट्रियां कायम की। इन्होंने विजयनगर रियासत से इजाज़त हासिल करके पोलीकट और नागपट्टनम के इलाक़ों में क़िलों की तामीर के बाद अज़ा इन्होंने पुर्तगीज़ियों को शिकस्त देकर कोची, कोडंगलोर, कुन्नूर और कोलम के क़िलों को हासिल कर लिया। इन्होंने कोची के बादशाह के साथ मुआहदा करके काली मिर्च की तिजारत में अजारादारी भी हासिल कर ली।
امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.